فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Jazakallah Hasib. Following the recitation of the Holy Quran, I am pleased to introduce our President Zafullah, who will provide a brief overview of the Young Peace and Development Corps and its mission. Thank you so much, Maheen. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of the Young Peace and Development Corps at the University of Agriculture, Faisalabad, I am delighted to welcome you all to this important webinar. Our gathering today is a part of our ongoing campaign to raise awareness about the monsoon season and the broader issue of climate change, a topic that is both urgent and close to our hearts. So basically, YPDC is a non-profit organization working under the Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives and the HEC. Basically, our commitment is to empower youth in promoting peace, development and sustainability. As our objectives are aligned with global challenges, so such as climate change, which I think is most urgent, which we address through educational initiatives, community outreach, and the collaborative projects. Sustainability is at the core of our mission as we strive to equip the youth of Pakistan with the knowledge and skills to become advocates of greener and more resilient future. So today's webinar is a crucial step in this journey, bringing together the experts and the passionate individuals to discuss the impacts of monsoon, the realities of climate change, and the action we must take. Your participation is key to driving the change we wish to see, and I am confident that together we can create a more sustainable Pakistan for generations to come. So, thank you so much for joining us, and let's work together to make a difference. Thank you so much, Zaf. Um, so, our webinar today is the continuation of our recent online campaign, Climate Change and Monsoon in Pakistan. This was a 5-day online campaign aimed to raise awareness about the pressing issues of climate change and its effects on our region, especially with respect to the monsoon and the ongoing seasons like monsoon and all of these things, and the effects of on agriculture and the other infrastructure and all of these things. You know, Pakistan's climate change and its impacts, disastrous impacts on our regions. We shared various activities and content during the campaign, and I hope that all of you have actively participated in on our social media pages and on some of the activities like storytelling and quiz competitions. And in this webinar as well, I hope that you will be engaging with us through your reactions, through your comments, and all of these things. So, to delve deeper into the topic, we are honored to have Ms. Mariam Khan, Deputy Director of the Environmental Protection Agency, as our guest speaker. Ms. Mariam has extensive experience in environmental issues and will provide valuable insights on this topic. Ms. Mariam, are you there? Assalamualaikum ji, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Now may I proceed now? Okay, thank you Yes, very ma'am. much. Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine, and it's really good to see such an important issue that you people are addressing right now. My name is Mariam Khan. I am working as an Deputy Director in Environmental Protection Agency Punjab since 2014. Coming to the issue that you are addressing right now, climate change. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने इसके बाकी सब इशू लाइक मूनसून इम्पैक्ट्स और वो सब तो प्रीवियस डेज में एड्रेस किए होंगे. ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मैं आप लोगों को जिस चीज के बारे में आप लोगों के मतलब करवाना चाह रही हूँ, आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट
वो ये है ऑब्वियसली कि अब क्लाइमेट चेंज को लेके गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट और अडैप्ट इट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस चैलेंज इन द फ्यूचर। अगर आप लोगों को मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं तो आई होप आप लोगों को पता होगा क्लाइमेट चेंज तो अब बहुत ज्यादा इशू हो गया है। पहले एनवायरनमेंट एक इन द ब्रॉडर टर्म इसी में ही क्लाइमेट चेंज को लिया जाता था, और 18th अमेंडमेंट से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट से पहले एनवायरनमेंट भी फेडरल सब्जेक्ट था, और ये फेडरल लेवल पे ही डिस्कस किया जाता था, वहीं पर ही इसके तमाम जो है होते थे। आफ्टर 18th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरनमेंट को डिवॉल्व किया गया प्रोविंस में, कि हर सूबा अपने एनवायरनमेंट के इश्यूज को खुद देखेगा। और उसी के नतीजे में फिर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 जो है उसको जो है वो हम लोगों ने अडेप्ट किया फेडरल से। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हर सूबे ने अपनी अपनी एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई, जिसका मेन पर्पस एनवायरमेंट और पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन था। उस टाइम पर चूंकि क्लाइमेट चेंज और ये सब इतने इश्यूज नहीं थे, क्योंकि और बहुत चीजों को देखा जा रहा था। लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के साथ उस सिग्नेटरी भी हुआ, और जिसमें आपको पता होगा UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट भी हम लोगों ने जो किया हुआ है, तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जब क्लाइमेट चेंज का इशू ऑब्जर्व करना शुरू किया गया, तो हम लोगों ने जब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी कर दी, तो फिर जो प्रोविंस थे वो भी बाउंड हुए कि अब वो इस इशू को खुद टेकअप करें। क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है कि खाली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसको नहीं देख सकती है, ठीक है। हर एक को इसको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सो अगर मैं आपको पंजाब EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की बात बताऊं, तो आपको पता होगा कि शायद नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी वो तो बनी थी, ठीक है, फेडरल लेवल पे, और उसी में ही नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एक्शन प्लान भी था, जिसमें उन लोगों ने तमाम जो है वो क्या कहते हैं उसको इवॉल्व करना था। पॉइंट एज के जब नेशनल लेवल पे तो बन गई, प्रोविंसेस ने कुछ ने इसको काम करना शुरू किया, कुछ ने काम करना नहीं शुरू किया। लेकिन जब तक आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं, तब तक आप प्रोविंस भी उसको ओन नहीं करता, और प्रोविंस इतना इसको सीरियसली भी नहीं लेता, क्योंकि आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। आपको अंदाजा होगा कि सबसे पहले काम अपने घर से शुरू होता है। अगर हम ही उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे, तो तब तक हम लोग जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। उस सिलसिले में खैर पंजाब ने भी काफी अरसे से कोशिश की। पहले उसने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई, वो ड्राफ्ट की, लेकिन स्टिल वो ड्राफ्ट फॉर्म में रही, उसके अंदर चेंजेस अप्स एंड डाउन रहे। फिर उसके बाद जो है अब रिसेंटली पंजाब ने क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 ये प्रिपेयर किया, और ये अभी इसी फ्राइडे को जो है कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है। सो इन द फ्यूचर पंजाब इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस एक्शन प्लान, और इसी के अंदर हम तमाम इश्यूज जो कि क्लाइमेट चेंज के हैं उनको एड्रेस भी करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज को आगे प्रोविंस में लेकर चलेगी, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आई थिंक इट्स बेटर अगर मैं शेयर कर लूँ ये डॉक्यूमेंट तो। Okay, sure, ma'am. ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, व्हिच इज राइट नाउ यू पीपल कैन सी। इसमें अगर आप ये देखें तो मैं इसके तरफ आती हूँ। इसके मेन कंपोनेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट के हैं क्या, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इन फ्यूचर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 3 क्रिटिकल पॉलिसी पिलर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट अडेप्टेशन का, सेकंड मिटिगेशन का, एंड 3 क्रॉस कटिंग एरियाज का। अडेप्टेशन के अंदर हम उन तमाम एरियाज को एड्रेस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, हेल्थ, ठीक है, हमने किस तरीके से इनको लेकर आगे चलना है। फिर मिटिगेशन पार्ट के अंदर ऑब्वियसली वो कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं जिनको हम करके इस क्लाइमेट चेंज के इशू को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या आप कह लें कि इसके इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। और ये जो तीसरा है क्रॉस कटिंग एरियाज, ये सबसे आप कह लो कि इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन अ वे कि पहले अगर आप पॉलिसीज या डॉक्यूमेंट्स या ड्राफ्ट देखते थे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अडेप्टेशन या मिटिगेशन की बात होती थी। क्रॉस कटिंग एरिया के अंदर जो चीज इंट्रोड्यूस कराई गई है वो ये कि कुछ सेक्टर्स या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है।
जैसे अगर आप ये देखें कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो आपको उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो उसमें क्रॉस कटिंग एरियाज में क्लाइमेट इंटीग्रेटेड प्लानिंग, ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम लोग कुछ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए भी, और कुछ ऐसे एरियाज जो कि डायरेक्टली तो नहीं उनका क्लाइमेट से लिंक है, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्लाइमेट के ऊपर जो है वो अपना इम्पैक्ट रखते हैं, तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा। फिर इसके अलावा इसका अगर हम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क देखते हैं, तो इसके अंदर इन्होंने ऑब्वियसली देखें, पॉलिसी बना देना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, मेन काम होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, तो तब तक वो पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है, ठीक है। पॉलिसी बनाने का मेन पर्पज ही यही होता है कि आपने किसी भी चीज को रेगुलेट करना है और प्रॉपरली उसको जो है ना एंड तक पहुंचाना है। तो उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इस पॉलिसी के लिए डिवाइस किया गया है वो ये कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई है, और कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई है फॉर एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट। ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी कि इस कमेटी का क्या काम होगा, इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, और इसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए, इसकी प्रोग्रेस और इम्पैक्ट्स को असेस करने के लिए भी इन कुछ स्टेप्स इसके अंदर आगे बताए गए हैं, जिसमें ऑब्वियसली अगर हम इसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे तो कुछ इसके अंदर सेल्स भी प्रपोज किए गए हैं कि हम लोग कौन कौन से जो है वो आप कह लो कि एक छोटे छोटे सेक्टर्स या सेक्शंस या डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, विच ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली। तो वो लोग जो एनवायरमेंट में या क्लाइमेट चेंज में काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, दे कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ टेबल ऑफ कंटेंट्स की अगर बात की जाए, तो ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट पंजाब क्लाइमेट आउटलुक, पंजाब के लैंड प्रोफाइल, उसके क्लाइमेट के पैरामीटर्स, सेक्टोरल ओवरव्यू, एमिशन का शेयर कितना है पंजाब में, फिर क्लाइमेट के क्या कौन से इम्पैक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट प्रोजेक्शंस, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, मिटिगेशन और क्रॉस कटिंग, और इन तीनों पॉलिसी पिलर्स के अंदर उनके टारगेट्स क्या क्या होंगे और आपने कैसे उन टारगेट्स को फिर अचीव करना है, वो मेजर्स डिस्कस किए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए, तो ये एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इसके अंदर प्रपोज किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे पिलर्स को जो है वो रखा गया है ताकि इस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर हम फिर इसके अलावा इसमें एक एक्शन प्लान प्रपोज किया गया है इन्हीं उन्हीं तीन पिलर्स को लेकर चलते हुए, कि और उसके अंदर बताया गया है कि कौन से मेजर्स शॉर्ट टर्म होंगे, कौन से मीडियम टर्म होंगे और कौन से लॉन्ग टर्म होंगे। और जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, उनका काम ही मेन पर्पस यही है कि उन्होंने इस क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स के जो आप कह लो कि मेजर्स इसके अंदर प्रपोज किए, फिर एंड में इस डॉक्यूमेंट को, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के भी इवन अगर आप लोग इस पॉलिसी या इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई इवैल्यूएशन करना चाहें या कुछ भी आगे इसके ऊपर कुछ काम करना चाहें, तो इस डॉक्यूमेंट की रेलेवेंस एसडीजीज, एनडीसीज और दूसरे फ्रेमवर्क्स जैसे नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी है, पंजाब एनवायरमेंट पॉलिसी है, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट कैसे कोरिलेट करता है वो भी डिस्कस किया गया। So you people can use this at reference also. ये पंजाब क्लाइमेट आउटलुक है, ठीक है, इसमें लैंड प्रोफाइल जो आप देखते हैं कि ऑब्वियसली, और इसमें चूंकि जितने रीसेंट या अभी चूंकि 2024 में हुआ है, तो अब तक का जितना लेटेस्ट डाटा हम लोगों को मिल सकता था वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर आप ये देखें तो इसमें ये वाला एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन पंजाब, कि अगर आप मतलब लाइक यू पीपल कैन गिव ऑन टिप्स कि कौन सा इवेंट स्पेशली क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर उसने इम्पैक्ट किया कि स्टेट को, ये ओवरऑल हम लोगों ने इसको टैबुलेट किया। सेक्टोरल ओवरव्यू, जो ओवरऑल ये दिया गया है कि किस सेक्टर का कितना है, पंजाब का ओवरऑल हर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमिशन शेयर ऑफ पंजाब, ऑब्वियसली कि पंजाब का टोटल जीएजी इमिशन कितना है, मतलब आपको भी पता होगा कि जीएजी इमिशंस के ऊपर ओवरऑल जो है वो इतनी ज्यादा अभी प्रोविंस लेवल के ऊपर काम नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल जो है इसके अंदर अगर आप देख सकें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा जो है वो शेयर जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। और साथ में इसके जो सोर्स जहां से ये हमने इंफॉर्मेशन ली है वो भी नीचे गिवन है। ओके ना, कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स इन पंजाब की अगर हम बात देखें तो ऑब्वियसली सबसे पहले टेम्परेचर चेंज एंड हीट स्ट्रेस, आपको भी पता है कितना ज्यादा जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस जो है प्रेसिपिटेशन एंड फ्लड्स, ये कितने, फिर इसी के अगर हम रिवर्स में देखें तो ड्राउट, इसके भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हैबिटेट जब तबाह हो रहा है तो फिर आपकी वाइल्ड लाइफ तो ऑटोमेटिकली इसमें इम्पैक्ट करेगी।
फिर ये यहाँ पर ये एक इस टेबल के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट क्लासिफिकेशन की गई है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह लो कि वो हाई अलर्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर जो है वो मीडियम या लो कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, कौन से इशू किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है। ये पूरा ओवरऑल अगर आप देख सकें तो ये इसको यहाँ पे टेबलेट किया गया। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट प्रोजेक्शंस के लिहाज से ये यहाँ पे कुछ स्टडीज जो हैं वो हम लोगों ने प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप लोग मतलब डिटेल इसको देखेंगे और मतलब होपफुली आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई हेल्प या गाइडेंस प्रोवाइड हो, सो यू पीपल कैन आस्क। अच्छा, इसके ओवरऑल ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स और जो मैंने बताया प्रिंसिपल्स, पॉलिसी एरियाज एज आई डिस्कस बिफोर कि इसमें अडेप्टेशन, मिटिगेशन और क्रॉस कटिंग है। अब अडेप्टेशन के लिए कौन कौन से सेक्टर्स को लिया गया है, इसमें वाटर रिसोर्सेज है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड क्लाइमेट जस्टिस। जो एक और है वो ये भी कि फ्यूचर में ऑब्वियसली क्लाइमेट जस्टिस भी एक होगा। अभी तक क्लाइमेट जस्टिस को इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में भी और ओवरऑल नहीं थी, लेकिन अब ये भी जो है इसको भी हम लोग इक्वली इंपॉर्टेंस देना शुरू हो गए। मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जिस पर काम करेंगे वो एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट एंड वेस्ट वाटर। इनके अंदर अगर हम लोग कोई ना कोई इंटरवेंशन या कुछ कर ले तो हम लोग उससे क्या होगा कि हम लोग इमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, विच अल्टीमेटली जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। क्रॉस कटिंग के अदर जो हम देखेंगे फॉरेस्ट्री, ग्रीन स्पेसेस, क्लाइमेट इंटीग्रेटेड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। जो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, ऑब्वियसली अगर मैं वन बाय वन इन पॉलिसी पिलर्स की बात करूं तो अडेप्टेशन के अंदर जो ये टारगेट्स दिए गए हैं, ठीक है, कि 2027 के अंदर हमने कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, 2030 में कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, 2035 में कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, ठीक है। तो ये पूरी उनकी टाइमलाइन दी गई है। अब इन टारगेट्स को हमने अचीव कैसे करना है वो बेसिकली यहाँ पर नीचे बताया गया है कि वाटर रिसोर्सेज के अंदर आप लोग कौन कौन से इंटरवेंशंस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी पे कैसे काम होगा, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज में कैसे काम होगा, क्लाइमेट जस्टिस पे क्या कैसे काम होगा। तो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो पूरा रोड मैप है वो यहाँ पर गिवन है। सेकेंडली लो कार्बन डेवलपमेंट, इसके अंदर इस सेम यही कि 2027 में अगर आप देखें कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम वो जीएजी एमिशन रिडक्शन। अच्छा, इसके ऊपर मतलब यू पीपल आर ऑल यंग, तो मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी क्योंकि इसका बहुत स्कोप है इन फ्यूचर। कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर जीएजी एमिशन रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग कार्बन फुटप्रिंटिंग के ऊपर काम करते हैं, अगर आप लोगों को ये पता हो कि आप लोग कार्बन एमिशंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी इन फ्यूचर बहुत मार्केट है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग कोई ना कोई ऐसा अपना स्किल जरूर डेवलप करें जिसकी वजह से आप लोग इन फ्यूचर जो है मतलब आप लोगों को पता हो कि मतलब हम लोग किस तरीके से जो है वो मतलब आप कह लो कि टेक्निकली भी साउंड करें और फाइनेंशियली भी, ठीक है। तो कार्बन एमिशंस के ऊपर चूंकि पॉलिसी भी हो सकता है, कार्बन ट्रेड पॉलिसी अप्रूव हो जाए, फेडरल कर ले, तो उसमें फिर ये होगा कि एक पूरा सिस्टम डिवाइस हो जाएगा जिसके अंदर कार्बन जो है वो किस तरीके से आप लोग कह लो कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करना आता हो। तो अगर आप इवन इवन अपनी यूनिवर्सिटी का कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस सिलसिले में अगर आप कैसे वो कैलकुलेट करना है तो आप उसमें जीएजी प्रोटोकॉल है वो देख सकते हैं, यूएसईपीए की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा टूल्स एंड मेथड्स दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से जो है वो इस पे काम कर सकते हैं। और इसमें स्कोप 1, 2 एंड 3 वो डिटेल है। मतलब मैं कहूंगी कि इन फ्यूचर अगर हुआ तो वो उसका भी उसके ऊपर भी आप लोगों को एक सेशन जरूर प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, 2030 में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इसके अंदर जितनी अगर आप ये देखेंगे पब्लिक बिल्डिंग्स एंड हॉस्पिटल सोलराइजेशन की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली इससे यही होगा कि हम जब हम सोलराइजेशन की तरफ मूव करेंगे तो हमारा एनर्जी जो है उसकी कंजम्पशन कम होगी। तो वो एनर्जी जो हम लोग मतलब आप कह लो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बना रहे हैं, उससे जो इमिशंस हो रही हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी फिर। और इसका भी सेम ऐसे ही इस मिटिगेशन मेजर्स में हम लोग कौन कौन से इंटरवेंशन किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। जैसे एनर्जी जनरेशन में यही कि आप लोगों ने उसके ऊपर सोलराइजेशन की तरफ जाना है। फिर इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, अगर हम देखें कोई लेबलिंग परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसमें हमने काम करना है। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर देखें तो बीइंग रेगुलेटरी एजेंसीज, इंडस्ट्रीज जो है वहां पर अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है, ठीक है। ब्रिक किलन्स देख लें, स्टील फर्नेसेस देख लें,
टेक्सटाइल सेक्टर में तो खैर ये है कि वाटर का ज्यादा है, लेकिन जहाँ जिन जिन इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स लगे हुए हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है। अब उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इंश्योर करवाना है कि इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ हो हर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में। और ऑब्वियसली वो थ्रू रेगुलेशंस एंड इंसेंटिव्स, या रेगुलेशंस के थ्रू तो हम कर रहे हैं। इंसेंटिव्स पे अभी काम इतना शुरू नहीं हुआ कि हम इंडस्ट्रीज को कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकेंगे अगर आप ये करेंगे। या गवर्नमेंट लेवल पे इस पे हो सकता है कि अगर वो किसी भी पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करवाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं तो उनको टैक्स में रिलीफ दिया जाए। कुछ इस तरह की जो है वो आप कह रहे हो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि वो इनकरेज हो। कुछ इंडस्ट्रीज पे हम लोगों ने ड्यूरिंग स्मोक सीजन भी लगवाना शुरू कर दिया हुआ है और उसमें लगे भी हुए हैं, वो फंक्शनल भी हैं। और अब हम ये भी जो नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं इसमें वो ये है कि हम लोग उन इंडस्ट्रीज में आप कह लो कि जो कैमराज हैं, ठीक है, वो भी, और उनके जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी एक्सेस एजेंसी को दी जाए। ताकि बजाय ये कि हमारे इंस्पेक्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी एचआर भी नहीं है तो ऑल द टाइम कि आप हर इंडस्ट्री को मॉनिटर कर सकें, तो अगर वो हमें ऑनलाइन एक्सेस देंगे तो उससे ये होगा कि हम लोग अपने ऑफिस में भी बैठ के उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि उनकी इमिशन जो है वो विद इन पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर इसमें भी जो है वो ये कि व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ियां, अगर आप ये देखें, हम लोगों की गाड़ियों की तादाद तो बढ़ती जा रही है रोड्स पे, लेकिन उनकी फिटनेस के ऊपर, क्यों कितनी गाड़ियां फिट हैं कितनी नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। और उसकी वजह से ही स्मोक में भी बहुत रोल प्ले हो रहा है, और ऑब्वियसली ये सारा जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है उसके अंदर भी। अब उसमें हमें इंट्रोड्यूस ये करवाना है कि हमने मैंडेटरी करना है कि व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम हो, ताकि वही गाड़ियां जो है, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, वो रोड पे हों, जो कि फिट हो, जो इतनी ज्यादा धुआं ना छोड़े। वेस्ट एंड वेस्ट वाटर के अंदर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में हम सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, फिर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, फिर इसके अलावा मीथेन कैप्चरिंग सिस्टम एट वेस्ट डिस्पोजल साइट, क्योंकि इस मीथेन को भी हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस एंड स्ट्रेटजीज। इसमें अगर मैं आपको थोड़े थोड़े इनिशिएटिव्स बताऊं तो अगर आप ये देख सकें, एक प्रोजेक्ट वैसे तो ये है कि हम लोग वेस्ट को भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज देखी हैं जो कि प्लास्टिक वेस्ट को आप कह लें कि रिसाइकल करके फर्नीचर्स बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप एक वेस्ट को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक इस तरह के आप वेस्ट के सिलसिले में, और ऑब्वियसली आपको पता है हमारी लैंडफिल साइट्स के जो हाल हैं वो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी को रीच कर चुकी हुई है, उनके पास उनमें इतना नहीं है कि अब वो मजीद जो है उस पर करें। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से बात करें तो आपको भी ये पता होगा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये स्ट्रैटेजी भी पंजाब ने नोटिफाई की है। इसके अलावा इसके रेगुलेशंस वगैरह भी हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पे वैसे ही बैन लग चुका हुआ है, और अब तो ये शॉपिंग बैग्स वगैरह का भी है। तो उसके ऊपर भी पंजाब, और ये स्पेशली ये वाली गवर्नमेंट का प्लास्टिक के ऊपर काफी काफी ज्यादा जो है वो फोकस है। क्रॉस कटिंग अडेप्टेशन, इसके अंदर इसमें हम देखें तो 2027 के अंदर जो टारगेट्स रखे गए हैं वो एक तो ये कि आपने जीएजी इन्वेंट्री डेवलप सिटीज क्लाइमेट एक्शन प्लान फोकसिंग ऑन जीएजी इन्वेंट्री। ये ऐसी चीजें जो हम मैं देखूं तो मैंने रिसर्च पेपर्स देखे हैं कि जिसमें उन्होंने सिटी लेवल के ऊपर जीएजी एमिशंस कैलकुलेट की गई हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो उन स्टडीज को यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट ने खुद से कोई स्टडी की हो, अभी ये अर्बन यूनिट ने कुछ इसके ऊपर काम किया है। लेकिन पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो उन्होंने जीएजी इन्वेंट्रीज या सिटीज इसके ऊपर ऐसा कोई प्रोजेक्ट या काम नहीं हुआ हुआ। तो ये इसको 2027, क्योंकि देखिए जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि किस सेक्टर से कितनी ज्यादा इमिशंस रिलीज हो रही हैं, आप उस सेक्टर के ऊपर उतना फोकस वैसे ही नहीं कर पाएंगे। अभी इसके अंदर भी जो डाटा यूटिलाइज किया गया है वो अर्बन यूनिट की ही जो फाइंडिंग्स है उनको यूटिलाइज किया गया है। फिर इसके अलावा हमने ये देखना है कि ऑब्वियसली आप एक्शन प्लान हर सिटी का सेम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लाहौर के लिए कुछ और होगा, फैसलाबाद के लिए कुछ और होगा, रावलपिंडी के लिए कुछ और होगा, और इवन अगर रूरल एरिया है तो उसके लिए कुछ और होगा। तो पॉइंट है वो तभी होगा जब आपके पास प्रॉपर असेसमेंट रिपोर्ट होगी उसकी। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका इनके लिए ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिफरेंट क्रॉप जोन्स, कि आपको ये पता हो, क्योंकि हम लोगों का था अभी ये है कि यही नहीं हम लोगों को पता होता कि कौन सी क्रॉप हमने कहाँ पे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो वो, और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी क्रॉप्स वगैरह जो है वो भी इफेक्ट हो रही है। 2030 तक जो टारगेट्स रखे गए हैं वो एक तो ये कि क्लाइमेट रिजिलियंट मास्टर प्लान फॉर लार्जर सिटीज टू एनहेंस क्लाइमेट रिजिलियंस।
वो जो है डेवलप करने हैं। फिर इसके अलावा कार्बन सिंक, ट्री प्लांटेशन के थ्रू, अर्बन ग्रीन फॉरेस्ट के थ्रू, वो हम लोगों ने 2030 तक जो है वो करना है। और उसमें हम लोगों ने कम से कम ये 10% है, और 100% तक क्या करना है कि ग्रीन बिल्डिंग कोड्स एंड इम्प्लीमेंट देम फ्रॉम ऑल न्यू पब्लिक बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग कोड्स के अंदर, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि ये जे इमिशंस और ये सब की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो भी क्रिएट हो रहा है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है। आपकी बिल्डिंग्स जो है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर जो है वो जब वो एनर्जी जो है वो कैप्चर कर लेती हैं, तो वो टेम्परेचर कंक्रीट की वजह से और इस सब की वजह से, तो आप ये देखें कि अब पहले होता था कि आपको कूलिंग इफेक्ट रात को फील होता था, लेकिन अब इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका हुआ है कि इवन अर्बन हीट आइलैंड की वजह से आपको रात को भी वैसे जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन महसूस होता हुआ नहीं होता। फिर इसके अलावा एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक इनका भी ये मतलब क्लाइमेट चेंज का की वजह से इन पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो इनको भी इसके अंदर क्रॉस कटिंग के अंदर रखा गया। 2035 तक जो टारगेट्स रखे गए हैं वो सिटीज के क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने, फोकसिंग ऑन जीएजी इन्वेंटरी पाथवे प्रोजेक्शंस। फिर इसके अलावा कार्बन सिंक, वही यही तमाम मतलब पहले इनके टारगेट थोड़े और फिर उसके बाद इनको ज्यादा कर दिया गया कि ताकि हम 2035 तक ओवरऑल इनको अचीव कर सकें। फिर इसका डिटेल एडेप्टिव और हम कौन कौन से मेजर्स लेंगे, ये पूरे ओवरऑल यहाँ डिस्कस किए गए हैं कि कौन कौन से हम लोगों ने करना है। इन्हीं इन चीजों को लेके ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताया गया है। इन्हीं को आगे लेकर जो है वो फिर हम लोगों ने इनके एक्शन प्लान बनाया। अच्छा, अगर क्लाइमेट इंटीग्रेटेड प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे डिस्कस करूं, तो एक चीज जो है वो ये मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, ठीक है। आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है एनवायरनमेंट के। हमारे 14 मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं जिसमें हम लोग सिग्नेटरी हैं, और उसमें से 7 जो है वो जीएसपी प्लस के लिए जरूरी है। जीएसपी प्लस क्या है? जीएसपी प्लस इज जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसके अंदर ये है कि अगर हम 14 में से उन 7 कन्वेंशन एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स की कंप्लायंस कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन में जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें जो है उसके अंदर वो मतलब टैरिफ डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर पॉइंट इस देखें, आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी है, आपको क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट भी है। तो ऑल द थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। अगर हम एक के ऊपर काम करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। इसके सिलसिले में मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें खैर मिनिस्ट्री तो काम कर ही रही है। मिनिस्ट्री बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो फेडरल लेवल पे है वो डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी है। ऑब्वियसली उन तमाम एग्रीमेंट्स की जो आप कह लें कि कंप्लायंस है, जो बाहर रिपोर्टिंग होती है, वो मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। मिनिस्ट्री प्रोविंस से लेती है। एपीए पंजाब के अंदर भी मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट सेक्शन एक डायरेक्टरेट जो है वो क्रिएट किया गया है जो पर्टिकुलरली इसके ऊपर काम कर सके। फिर इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ये कि ग्रीन फाइनेंसिंग और ये ग्रीन इनको तो आपने करना ही है। लेकिन मैं इसमें ये भी आपको कहूंगी कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बाहर बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, इवन आपके लिए प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इस इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है। जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ठीक है। इसके अलावा जेफ है, ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर वो आपको मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं अगर आप उनको क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं और प्रॉपर उसका जो है वो प्रोटोकॉल है। तो अगर आप में से किसी को ऑब्वियसली राइटिंग में इंटरेस्ट हो या आप लोगों की स्किल्स अच्छी हो प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलप करने में, तो आप उनकी वेबसाइट्स को विजिट करें और वहां पर देखें किस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने वहां सबमिट करवाने। सो यू पीपल कैन सबमिट अ प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड अवेल फंडिंग फ्रॉम दैट फैसिलिटीज। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन, अब ये तो 3 पॉलिसी एरियाज उनके ब्रॉडर टर्म। अब इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए करना क्या है? इसमें सबसे पहले तो ये कि क्लाइमेट चेंज सेल जो है वो की प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो क्रिएट होगा। ऑब्वियसली प्रोविंस के अंदर जितने जितने इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मेजर रोल है, वहां पर जब क्लाइमेट चेंज सेल क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज पे तो होगा ही, लेकिन उससे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है। इसके अलावा रूल्स ऑफ बिजनेस रिवाइज होंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? सेक्रेटरीट मतलब गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, ठीक है। हर गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक मैनुअल एक के थ्रू करती है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो बेसिकली आपके लिए एक मैनुअल है जिसके थ्रू ही हर गवर्नमेंट ने काम करना होता है। तो चूंकि पहले क्लाइमेट चेंज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं था, क्लाइमेट चेंज का इतना कॉन्सेप्ट बहुत पहले नहीं था, तो ये तो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो अब ये है कि इवन मैं अगर हमारे की बात करूं, पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
उसमें क्लाइमेट चेंज का वर्ड नहीं है। उसके अंदर कहीं पे जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने कैसे काम करना है मेंशन नहीं है। सो अब हमने भी अपने एक्ट के अंदर क्लाइमेट चेंज को रिवाइज करना है, और इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट का नाम ही, जो कि पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट था, वो अब चेंज होकर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट हो गया। इसके अलावा ये सेकेंडली वही कि हम लोगों ने अपने एक्ट के अंदर करना है, ताकि हम फिर पंजाब क्लाइमेट चेंज एक्ट एक बनाएंगे अंडर द पंजाब क्लाइमेट चेंज, ये पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017। पाकिस्तान लेवल पे, फेडरल लेवल पे तो क्लाइमेट चेंज एक्ट बन चुका है, लेकिन पंजाब का भी फॉर्मुलेट नहीं हुआ। तो जब हमें एक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो आप कह लो कि एक इसको एक लेजिस्लेटिव सपोर्ट भी मिल जाएगी। अच्छा, क्लाइमेट एजुकेशन अवेयरनेस एंड आउटरीच, आई थिंक पर्सनली कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम आप लोग बेसिकली क्लाइमेट एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हो। सो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो होने चाहिए, और ताकि उससे योगा, और इसमें अगर आप देख सकें तो सेम आप लोगों का ये जो है, ये इस एजेंडा को भी फुलफिल करता है, दैट यू एंगेज द यूथ टू प्रमोट क्लाइमेट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायनेमिज्म टू क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम्स। कि अगर आज आप लोग ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं और आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट इन द फ्यूचर इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस, तो आप लोग भी आगे अवेयर करें और इसी को ही आगे लेकर चलते हुए अवेयरनेस प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आप लोगों को ही हम अवेयर नहीं करेंगे, यूथ को ही पता नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, कौन से पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, सो फिर आगे नहीं। और पर्सनली आई थिंक चीजें बहुत चेंज हो चुकी हुई हैं। पहले था कि यूथ को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने इतने अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, सोशल मीडिया पे इतने अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन अब तो सोशल मीडिया और इतने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो चुके हुए हैं कि मुझे लगता है आप लोगों को शायद हमसे ज्यादा पता होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेटा शेयरिंग, इवन डिपार्टमेंट्स के अंदर डेटा शेयरिंग जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होता बेसिकली क्या है, ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे होते, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, और वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग मतलब एक आपस में डेटा शेयरिंग नहीं करें, हम लोग साइलोस में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता होता कि ये इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट के पास है या नहीं है। तो उसकी वजह से हम लोग ऑब्वियसली एक एक आप कह लो कि प्रॉपर जो हम लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर एक विजन चाहिए होता है, वो प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो अगर ऐसे हम लोग डेटा शेयरिंग विद इन डिपार्टमेंट्स वो भी प्रोवाइड होगी, तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली आप ये आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर भी ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ट्रांसफर करके आप कह लो इमिशन रिडक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं, वो भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें ऑब्वियसली आप लोगों का भी बहुत, यूनिवर्सिटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जितने अपनी रिसर्च वर्क करते हैं वो भी। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी एक आप कह लें कि एक लिंकेज हो, उससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो फायदा लें और उसको हम लोग आगे एग्जीक्यूट करें फिर। क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड ग्रीन इकोनॉमी पर क्रिएट किया जा रहा है, और उसमें फिर एक क्लाइमेट फंड को नोटिफाई किया जाएगा, जिसका मेन पर्पस ही रिसर्च को सपोर्ट करना है, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस को। तो उससे ये होगा कि फिर वो ऑब्वियसली जब इसके प्रोटोकॉल्स बनेंगे तो फिर उसमें वो हो जाएगा कि इवन यूनिवर्सिटीज में इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है इस क्लाइमेट फंड को अवेल करने के लिए, लेकिन होपफुली होपफुली होंगी। अच्छा, अब अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की तरफ आते हैं, तो ये बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रोविंस लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसको सीनियर मिनिस्टर पंजाब जो है वो चेयर करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को चेयर, और सेक्रेटरी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट इसके मेंबर होंगे, और सेक्रेटरी होंगे। इसमें सीनियर मिनिस्टर पंजाब को चेयर करने के लिए या उनको एज अ चेयरपर्सन इसलिए रखा गया है, क्योंकि देखिए जितना हाई लेवल होता है उतनी ही सीरियसनेस भी क्रिएट होती है, उतनी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो एलोकेट होती हैं। तो जब एक सीनियर लेवल के ऊपर ये मीटिंग चेयर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जितने इसके अंदर एलाइड डिपार्टमेंट्स या मेंबर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो अपने काम को फिर थोड़ा सीरियसली लेते हैं, टेकअप करते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट भी प्रपोज की गई है, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट जो है उसको करेगा। और बेसिकली इस कमेटी का काम क्या होगा कि वो इस प्रोविंशियल कमेटी को एक्सपर्ट ओपिनियंस प्रोवाइड करेगी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो उनको किसी भी किस्म की जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, तो इस कमेटी का काम होगा कि वो उनको दे। और जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है वो इसमें एज अ सेक्रेटरीट काम करेगा इस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स का। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से
इसके अंदर जो इन्होंने टास्क असाइन है, सबसे पहले तो एक क्लाइमेट चेंज डैशबोर्ड बनेगा। इस पोर्टल का काम क्या होगा, ऑब्वियसली कि जो पॉलिसी टारगेट्स और जितने इसमें हैं वो इसको मॉनिटर करेगा। फिर इसमें क्लाइमेट फाइनेंस के, क्योंकि वो भी इसके अंदर रखा गया है, तो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किस तरीके से, मतलब ये इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए कि आपको पता हो कि जो पैसा आ रहा है वो किधर लग रहा है, जिस एक्शन प्लान के लिए, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा एलोकेट किया गया था, तो वो उसकी प्रॉपर डिस्पर्समेंट और प्रॉपर रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा जो एनुअल स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है उसके लिए डाटा गैदर किया जाएगा। अभी आपको शायद पता होगा कि पंजाब ने एनवायरमेंट स्टेट ऑफ रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। तो इन फ्यूचर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट भी जो है वो स्टेट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट भी पब्लिश होगी। और उसके अंदर वही बात है कि तमाम जो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हुआ हुआ होगा वो हम लोग पब्लिश करेंगे। फिर इसके अलावा सीएम सेक्रेटरीट के अंदर एक कंप्लेन हॉटलाइन जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। और इसका मेन पर्पस ये होगा कि कोई भी अगर कंप्लेन करना चाहे, टेलीफोन, ईमेल, वेबसाइट और इन राइटिंग, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि आपको लग रहा हो कि ये क्योंकि डैशबोर्ड होगा, मॉनिटरिंग हो रही होगी प्रॉपरली, या अब क्लाइमेट एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए, जो भी कंप्लेन होगी, तो ये आम सिटीजन्स के लिए है कि वो इसको वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसमें रेगुलर ऑडिट्स भी करवाएगा क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के, ताकि उसमें बता सके कि प्रॉपरली हर चीज हो रही है या नहीं। फिर इसके अलावा रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड अपडेशन, इसमें जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स और अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, ठीक है, वो रेगुलरली रिपोर्ट अपनी प्रोग्रेस की इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट करवाएंगे। Policy document will remain a living document and undergo review and updating as and when necessary। ये क्लॉज इसलिए इसके अंदर रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि अब ये बन गया है तो ये अपडेट नहीं हो सकता या इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मतलब अगर आप आज से पहले वाले डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसमें क्लाइमेट जस्टिस इसकी कभी बात नहीं होती थी, लेकिन अब क्लाइमेट जस्टिस को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। सो इन फ्यूचर भी ये होगा कि जो आप कह लें कि न्यू हॉट टॉपिक्स क्लाइमेट रिलेटेड, अगर हमें उनकी जरूरत महसूस होगी और हमें ऑब्वियसली जब हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू होंगे तो हमें आइडिया होगा कि किस सेक्टर के ऊपर हमें रिवीजन की जरूरत है, किस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे हमें इस तरीके से काम करने की जरूरत है, तो हम इस पॉलिसी को फिर रेगुलरली अपडेट करते जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस ये बन गया तो अब ये डेड डॉक्यूमेंट ही है और हमने बस इसको वो करना नहीं है चेंज, ऐसा नहीं है। और सेकेंडली बात ये है कि आप लर्निंग से ही सीखते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज आप पहली बार ही आपको लगे कि वो परफेक्ट है, तो ऐसे नहीं होता। आप जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कितने हर्डल्स आ रहे हैं, किस चीज के ऊपर रिविजन की जरूरत है, किस चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। अब वो जो 3 पॉलिसी पिलर्स ऊपर थे उनका डिटेल एक्शन प्लान कि किस तरीके से वो अचीव होंगे, कौन कौन से इसमें मेजर्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। कि अगर जैसे सेटअप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पब्लिक बिल्डिंग्स एंड हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे असाइन कर दी गई है कि किस डिपार्टमेंट ने इसको अचीव करना है और कितनी देर में करना है। उसमें भी यहाँ पे टाइमलाइंस दी गई है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को विद इन 1 to 2 years रखा गया है, मीडियम टर्म को 3 to 5 years और लॉन्ग टर्म को 5 to 10 years। सो हर डिपार्टमेंट का ये रोल बताया गया कि उसने इस टारगेट को कितनी देर में अचीव करना है। अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट जो है वो है। फिर इसी तरह ही आगे ये वाले कुछ टारगेट्स को जो है वो मीडियम टर्म के अंदर रखा गया है। और इन्हीं एक्शन प्लान्स की कि इनके ऊपर जो काम करना था उनका ही काम होगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और वो सब मॉनिटर करेंगे कि ये अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर अडेप्टिव मेजर, ये ऊपर जो था वो सारा वो था मिटिगेशन का, ये अडेप्टिव मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी सेम यही एक्शंस बताए गए हैं। फिर उसमें क्योंकि अडेप्टिव ऑब्वियसली हम लोग जिस तरफ जा सकते हैं वो यही कि हम अपने जो आप कह लो कि रामसर साइड्स हैं इनकी करें। फिर इसके अलावा हम ये जो पब्लिक डाइवर्सिटी हैबिटेट कंजर्वेशन है, फिर ये फॉरेस्ट्री वगैरह, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। तो फिर इसके अंदर ये इसके अंदर भी शॉर्ट और मीडियम टर्म रखें। अगर आप अभी तक देखें तो यहाँ पर कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म तक भी गए हैं, यानी 5 to 10 years के, और ऑब्वियसली वो वाले होंगे जो अभी इतनी जल्दी अचीव नहीं हो सकते हैं। फिर ये डिजास्टर के पॉइंट व्यू से, जिस तरह ये अभी भी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड्स और ये सब इश्यूज हो जाते हैं,
कि इनके लिए भी कौन कौन से हम लोगों ने एक्शंस लेने हैं, किस तरीके से हम लोगों ने इस पर काम करना है, ये सारा इसके अंदर की बने। अगर आप लोग इसको आराम और तसल्ली से भी स्टडी करेंगे तो आई होप आप लोगों को इसमें सब चीजें जो है वो समझ आएंगी। हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर भी एक्शन जो है वो इसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट को, पीडीएम में भी स्मोक के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ काफी काम कर रहा है। और इसका मेन काम जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से जिस तरह आप ये देखें तो जेंडर रिस्पॉन्सिव अडेप्टेशन, इसको पूरा इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इसके अंदर बताया गया है कि अब आप ये देखें क्लाइमेट जेंडर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शन प्लान 2023, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। और ये मतलब अब इन फ्यूचर इसके ऊपर भी काफी काफी ज्यादा काम होगा। फिर मिटिगेशन एंड लो कार्बन डेवलपमेंट के हवाले से ये एनर्जी जिस तरह सोलराइजेशन की तरफ जाना है, कितनी देर में जाना है। फिर आप लोगों ने कौन कौन से मतलब पॉइंट है इसके बजाय ये कि आप ऐसे एक्शन प्लान्स रखें जो आप अचीव ना कर सकते हो, उससे बेहतर है कि आप ऐसे रखें जो इम्प्लीमेंटेबल। ठीक है, ये बात कि आप कोई मतलब हमें अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को भी सामने रखना है पाकिस्तान की, हमें अपनी क्लाइमेट जो हमारा वेदर है उसको भी रखना है। तो इन चीजों को देखते हुए ही छोटे छोटे स्टेप्स ही लें, लेकिन एटलीस्ट वो स्टेप्स लें। ऐसा ना हो कि हम वो काम बिल्कुल ही छोड़ दें तो आप किसी भी उस पे ना पहुंचे। फिर एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर भी चूंकि एनर्जी सेक्टर है तो मेजर इसके अंदर एनर्जी डिपार्टमेंट को जो है वो रखा गया है चीजों के लिए। अभी भी जो है वो काफी एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कर रहे हैं सोलराइजेशन के ऊपर। इंडस्ट्री इंडस्ट्री चूंकि हमारा ऑब्वियसली हम रेगुलेटरी हैं तो इसके अंदर इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी उसमें रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर वैसे तो आई नो कि मतलब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लैरिटी थोड़ी सी होगी, लेकिन फिर भी चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये ईपी एंड सीसीडी और ईपीए इन दोनों में डिफरेंस आई डोंट नो आप लोगों को मतलब है आइडिया या नहीं। लेकिन बेसिकली जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट वो सेक्रेटरीट है, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, ठीक है। सेक्रेटरीट को सेक्रेटरी हेड करता है और उसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेता है, आप कह लें कि पास ऑन करता है, प्रोग्रेस लेता है। एजेंसी जो है वो डायरेक्टर जनरल हेड करती है और उसका काम एजेंसी का काम क्या होता है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा ये जितनी सारे अब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है तो ये बेसिकली एजेंसी ने ही इसको इम्प्लीमेंट करवा के तो सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करनी होती है। इसमें हम लोग जो है वो ऑब्वियसली अभी सर्कुलर इकोनॉमी का भी एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया, उसको भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। एयर बेस्ड इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, अभी पंजाब का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर भी इन्होंने एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस, क्योंकि अभी हम लोगों को स्मोक में या ऑब्वियसली वैसे भी अगर हो तो हम लोगों के पास इतने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस नहीं है जिसकी वजह से हम इतना इनको अपडेट नहीं कर पाते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या एयर क्वालिटी की सिचुएशन है। तो वो भी हम लोग जो है वो परचेज कर रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि वो आइडेंटिफाई भी अगर आप लोगों को टाइम मिल सके तो आप लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की वेबसाइट पे भी और इवन उनका जो फेसबुक पेज है वो भी, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट इनका जो है एफपी पेज वो भी अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें जितने की इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ले रही है वहां पर रेगुलरली हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो वो इवन वहां पर उन्होंने बकायदा जो आप कह लें कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है उनके लिए जोन जोन से डिस्ट्रिक्ट और साइट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि यहाँ पर ये मॉनिटरिंग स्टेशन लगेंगे ताकि हमें गुड पिक्चर मिल सके। तो वो भी उसके अंदर वहां पे अपलोड हुआ हुआ है और उसमें 30 हम लोग परचेज कर रहे हैं। और फिर वो बात है उसकी मॉनिटरिंग भी डैशबोर्ड के थ्रू होगी प्रॉपरली कि हमारे पास डाटा आए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो ताकि हम लोग डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। फिर इसके अलावा एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी करंटली एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है तो वो हम लोग फ्रेमवर्क में इन फ्यूचर इस्टेब्लिश करेंगे। फिर एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, एनुअल कैप्स ऑन एमिशंस, कॉन्टिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इंसिनरेटर जहाँ पे लगे हुए हैं वहां पर भी हम लोगों ने ये कंडीशन मस्ट लगा दी है कि वो इस सिस्टम को जो है वो परचेज भी करें और हमें इसके ऑनलाइन एक्सेस भी प्रोवाइड करें। और इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे ये जो ब्रिक किलन्स का 100% कन्वर्जन, इसमें भी ये है कि हम लोगों ने
काफी ज्यादा ब्रिक किलन्स को कन्वर्ट कर लिया है। जो कन्वेंशनल थी, अगर आप देखें तो वहां पर उसका बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन थी, तो उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड की जाए टू इम्प्लीमेंट RECP टेक्नोलॉजी एडॉप्शन प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली जिस किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी, ये इन द लॉन्ग टर्म में रखा गया, वो भी किया जाएगा। इसके अलावा इनकरेज कॉर्पोरेट सेक्टर टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसके ऊपर इंडस्ट्रीज काम करती हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज करती हैं कि वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ ना कुछ जो है वो अपनी कंप्लायंस वो शो करती हैं, लेकिन इसको इनकरेज करने की और इसको मजीद इम्प्लीमेंट करने की, और ये लॉन्ग टर्म नहीं, आई थिंक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस कि कुछ ना कुछ वो इसके अंदर काम करते रहे, अपने प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे लेकर आए। कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो इंडस्ट्रीज जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको प्रोवाइड करें। ट्री प्लांटेशन के सिलसिले में भी इंडस्ट्रीज इसमें काफी ज्यादा जो है वो हेल्प आउट करती हैं कि अगर कहीं पे प्लांटेशन करनी हो। इसके अलावा डोमेस्टिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम विद इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स ETS, इसके ऊपर भी लिंकेज जो है वो ये सॉरी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लिंकेजेस डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले तो क्रिएट होगा तो फिर लिंक डेवलप होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कार्बन न्यूट्रल एंड नेट जीरो प्रोग्राम। कुछ इंडस्ट्रीज तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, स्पेशली इन द टेक्सटाइल सेक्टर। उन्होंने अपने टारगेट्स कुछ ऐसे सेट किए हुए हैं, और उसकी ये वजह भी है कि उनके बायर्स की वो डिमांड है जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री अभी इस तरफ नहीं मूव कर रही है, तो हमें इंडस्ट्रीज को इसकी तरफ लेके जाने की जरूरत है। इसके अलावा कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब इंडस्ट्रियल स्टेट तो इस्टेब्लिश हो जाती हैं, और जब इस्टेब्लिश होती हैं तो ये कहा जाता है कि वहां पर कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, कि हम तमाम इंडस्ट्रीज का पानी कलेक्ट करके उसको ट्रीट करेंगे और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इसके ऊपर भी, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए भी मतलब काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिर ऑब्वियसली उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस और वो सब चीजें भी होती हैं। फिर ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत ज्यादा की सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इसका इसका काफी ज्यादा आप कह लो कि इस सेक्टर का इमिशन का काफी ज्यादा रेशो है जो कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है वो पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क और ये तमाम चीजें जो हैं वो रखी गई हैं ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसके ऊपर काम कर सके। इसमें अगर मैं EPA के परस्पेक्टिव से बात करूं तो ऑब्वियसली व्हीकुलर एमिशंस को स्ट्रिंजेंट ये इसलिए रखा गया क्योंकि व्हीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, EPA ने डिवाइस किए हुए हैं। सो EPA ही फिर इसको रेगुलेट भी करेगा। वेस्ट एंड वेस्ट वाटर, इसमें वही कि आपने ऑब्वियसली मीथेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मीथेन इमिशन रिड्यूस हमने ग्लोबली प्लेज भी किया हुआ है। फिर इसके अलावा साइंटिफिक लैंडफिल्स इन मेगा सिटीज, अभी हम, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई लैंडफिल साइट्स साइंटिफिकली डिजाइंड हुई हुई है, ठीक है। तो और जो ऑलरेडी गिवन है उनकी भी कैपेसिटी का अब जो हाल हो चुका हुआ है, वो भी पंजाब में स्पेशली लाहौर में अगर देखें तो महमूद बूटी, उसका भी इसी तरह ही है क्या, वो भी बस। इसके अलावा जीरो प्लास्टिक वेस्ट सिटीज इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया जाए ताकि हम लोग इसको प्लास्टिक फ्री बना सकें अपनी सिटीज को, तो वो बहुत ही बेटर हो जाएगा। इसी तरह ही इसकी मल्टीपल आगे जो है वो, अगर इसमें मैं देखूं तो फेज वाइज इंस्टॉलेशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल स्टेट में तो आप वहीं पर ही एरियाज बनाएं कि वहां पे लैंडफिल साइट्स हो, ताकि इंडस्ट्री का वेस्ट वहीं पर ही हो और आप उसी को ही वहां पर किसी भी तरीके से, इवन आप बाज का अगर आपको पता होगा कि किसी एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज हो सकता है, कि वो उनकी किसी ना किसी कंपोनेंट में, तो हम इस किस्म की स्ट्रैटेजीज और इस किस्म के वेस्ट को भी आइडेंटिफाई करें ताकि हम इसको मिनिमाइज कर सकें। और ऑब्वियसली इन सब के लिए ही इनको फंडिंग रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उसके बगैर तो आप कुछ भी जो है वो नहीं अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्लाइमेट इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, ठीक है, इसमें भी ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स हैं कि आप वो कर सकें। फिर आप अपने SDGs की अलाइनमेंट विद डेवलपमेंट पैराडाइम, उससे क्या होगा कि आप ग्लोबली लेवल पे इसको अचीव कर सकते हैं। आप जो भी काम करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर वो करेंगे। फिर इसके अलावा वो अपने एक्शन प्लान्स इन कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन करें इसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, ताकि हम इसको इसकी फंडिंग के लिए फिर उसको क्लेम कर सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर वे डेवलपमेंट अथॉरिटीज और ये सब कुछ,
एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली आप लोगों की अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का भी इसके अंदर वो रखा गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को भी इसके इनिशिएटिव्स इसमें छोटे छोटे टास्क असाइन करके ताकि हम एक बिगर एम को अचीव कर सकें, उस सिलसिले में ये पूरा एक डिवाइस किया गया। और इसमें आप लोगों के लिए भी अगर ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह या कुछ भी वो इनिशिएट होते हैं तो वो, और अगर आप लोगों के लिए हाँ ये एक हो सकता है, ये जो आप कह लो कि टारगेट्स हैं या एक्शन प्लान्स हैं, इसमें से अगर आप लोगों का इन फ्यूचर कोई रिसर्च का हो और आप लोग इसमें से भी कोई आइडियाज पिक करें कि इसके ऊपर हम इन फ्यूचर रिसर्च कर सकते हैं, तो वो भी एक काफी मतलब लाइक एक ऐसी चीज होगी जिससे आपकी स्टेट को और आपके मतलब एटलीस्ट जो है प्रोविंस को फायदा होगा कि आप लोगों का ऐसे ही नहीं कि बस ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास पता होगा कि इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे होंगे जिनके ऊपर कभी रिसर्च ही नहीं हुई होगी। सो वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए भी किए गए हैं, क्योंकि ये सारे क्रॉस कटिंग में आते हैं। फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक पूरा एक यहाँ पर वो रखा गया है कि सबसे पहले तो एक क्लाइमेट फाइनेंस यूनिट बनाया जाएगा, ठीक है, जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। फिर ग्रीन जॉब्स को प्रमोट किया जाएगा थ्रू क्रिएटिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मल्टीपल सेक्टर, ठीक है, फॉर बोथ जेंडर्स। फिर इसके अलावा एक्शन प्लान फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन पंजाब जो है ये बनाया जाएगा। फिर कंडक्ट a comprehensive study of key supply chains in Punjab to identify existing and potential climate risks to advance the green economy. इसके अलावा prioritize initiative schemes and projects and programs that can effectively address climate impacts on the economy. ये इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिकली होता यह है कि हम लोग गवर्नमेंट बाज़ औक़ात ऐसे प्रोजेक्ट्स को जल्दी पहले कर रही होती हैं जो इतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं, तो आप प्रायोरिटाइज कर सकें कि आप उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जिनका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। फिर आप ग्रीन प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल्स विद पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, इसके थ्रू इसके अंदर भी ग्रीन प्रोक्योरमेंट का क्या कि आप ऐसी कोई चीज प्रोक्योर गवर्नमेंट नहीं करेगी जिसका इम्पैक्ट, जिसके इमिशन ज्यादा है, ठीक है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। सो हम लोग इसको भी अब थोड़े ग्रीन प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऑडिट्स होंगे ऑब्वियसली क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट ताकि ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके। फिर मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एमिशन रिडक्शन सच एज ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। डेवलप अ फ्रेमवर्क टू सप्लाई इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर एमिशन रिडक्शन, इससे भी बहुत ज्यादा जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि अगर आप किसी को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे तो। फिर पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन सेक्टर एंड टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखें ये एक ऐसा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज की जिसमें खाली गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है वो कहते हैं ना, एक और एक 11 ही होते हैं, तो अगर आप इसके अंदर इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस विन कर लेते हैं, अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनको प्रमोट करते हैं, देखें जिसके पास, जिस इंडस्ट्री के पास पैसा होगा ना, उसको अगर हम कहेंगे कि आप पोल्यूशन कंट्रोल इन्वेस्टमेंट डिवाइस लगा लें तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके पास है इतना कि वो अफोर्ड कर सकता है। असल प्रॉब्लम आती है उन इंडस्ट्रीज के लिए जो स्मॉल और मीडियम में फॉल करती हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो उनके लिए ये हम अपना बिजनेस रन कर सकें या हम एनवायरमेंट को क्लीन करने की तरफ जाएं, तो असल जरूरत उनके साथ काम करने की है आपको। और इसके अंदर अगर एट द एंड अगर आप देखें तो वही जो मैंने बात की थी कि अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली अगर किस तरीके से अलाइन करता है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूटर्स के साथ और अदर फ्रेमवर्क्स, तो हर एक सेक्टर जो इसके अंदर सिलेक्ट किया गया है उसमें बताया गया है कि ये कौन से नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट था, कौन से एसडीजी को कवर करता है, कौन कौन से फिर एसडीजी के टारगेट्स हैं जो इससे अचीव हो जाएंगे अगर हम इस सेक्टर पर काम करेंगे, फिर पाकिस्तान के कौन से एनडीसीज इसको एड्रेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर अदर हैं तो वो भी क्या है, जैसे कि मतलब आप कह लें कि नेशनल एडेप्टेशन प्लान और ये तमाम आगे रेफरेंसेस के तौर पे दिए गए हैं। तो ये भी तमाम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं इन सेक्टर्स के लिए, ठीक है। और ये इसी तरीके से सारे सेक्टर्स वन बाय वन गिवन है, ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस। और इसमें पहले अडेप्टेशन फिर मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा बताया गया है। और इसमें बहुत से हो सकता है डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हो जो आपको ये भी पता ना हो कि अच्छा ये नोटिफाई भी हुए हुए हैं, अच्छा ऐसे कोई पंजाब में एग्जिस्ट भी करते हैं। ये पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश 2023 के अंदर हम लोगों ने नोटिफाई की है। पंजाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हुई है, पंजाब एनवायरमेंट पॉलिसी बनी हुई है। ये क्रॉस कटिंग के अंदर जो फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट इंटीग्रेटेड प्लानिंग है
वो उससे कौन कौन से अचीव होंगे। जिस तरह ये आप देख सकते हैं ना, रामसर कन्वेंशन, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये वो तमाम ये देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये तमाम कन्वेंशंस वो हैं जो कि मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स यानी कि उसके अंदर फॉल करते हैं और GSP+ के अंदर है। तो इनकी कंप्लायंस जरूरी है, इनके ऊपर काम करना जरूरी है। अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली उससे हमारी अचीवमेंट्स ही हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल ये भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस कोई कुछ हो तो आई एम विलिंग टू आंसर इट। Thank you so much, ma'am, for your insightful presentation. We are pleased to have you as our guest speaker. So, audience and students, if you have any questions, feel free to ask. You can open your mic as well as you can ask questions in the comment section. ऑडियंस में से सब लोग जो हैं वो 1 बाय 1 हैंड रेज कर रहे हैं और उनके क्वेश्चन एक एक करके अपने सवाल लें। Yes, sir, Shokal, you can unmute yourself and add your comments. Ji, thank you very much, Mariam Khan. I'm really grateful, and you have given a very comprehensive talk about the concept of the climate change. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है, इट्स रियली बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है, रादर ये बड़ा एम्बिशियस डॉक्यूमेंट है। तो हम देखते हैं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिसी फार्मूलेशन है और मैं बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्सटेंशनिस्ट हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत से एम्बिशियस डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और फिर वो साल जो हैं वो अलमारियों में पड़े रहते हैं, तो क्या क्लाइमेट चेंज एजेंसी जो है उसके पास आप समझते हैं कि इतना ऐसी एक्सपर्टीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, फंडिंग है और विल है कि ये डॉक्यूमेंट में जितने भी एस्पेक्ट हम देखते हैं इसको परस्यू किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये इसमें कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि हम ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत ही सीरियस इशू है। मैं विजिट करता हूँ फील्ड में और हमारी एग्रीकल्चर जो है इस दफ़ा क्लाइमेट चेंज ने एग्रीकल्चर को जितना हिट किया है, मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी जो 35-40 साल जो जिंदगी है उसमें मैंने नहीं देखा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज सुबह मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि ठंड आ गई है और सर्दी का मौसम आ गया है और कंबल के अंदर भी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन जब मैं सुबह 9 बजे बाहर निकला हूँ तो अच्छी खासी धूप थी। मतलब इतनी जो वेरिएबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट के अंदर, ये पहले हमने ऑब्जर्व नहीं की और ये हमारे एग्रीकल्चर खास तौर पे क्रॉप्स को हिट कर रही है। तो इस हवाले से मैं आप एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको आंसर करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब। अच्छा, इस तरह है कि देखिए, आपकी बात मैंने जिस तरह पहले भी की कि डॉक्यूमेंट्स पहले भी बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर करती है और किस तरीके से। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डिटेल देखेंगे तो इसके अंदर पॉइंट इज कि हम लोगों ने जिस तरह कहा है कि एक क्लाइमेट चेंज सेल प्रपोज किया है, ठीक है। उसका करने का मकसद क्या है? उसका करने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि एक डेजिग्नेटेड और डेडिकेटेड स्टाफ इसके ऊपर काम कर सके। अगर हम एग्जिस्टिंग सिनेरियो की बात करें, ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज पे अभी भी काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन वही बात है, थोड़ा बहुत जितनी हमारे पास कैपेसिटी है, जितनी HR अवेलेबल है, जितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, तो वो आप वही बात है ना, अगर स्मोक का इशू आता है तो हम सब
उधर लग जाते हैं, प्लास्टिक वेस्ट पे कैंपेन होती है तो सब उधर लग जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज सेल बनाने का मेन मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि पर्टिकुलरली डेजिग्नेटेड स्टाफ इसके ऊपर काम कर सके। जहां तक फंडिंग की बात है तो ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स तो एडीपीज में जाएंगे, ठीक है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग और क्लाइमेट फाइनेंस यूनिट बनाने का भी मकसद सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस कर सके जो इन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दे सके, ठीक है। चाहे हम वो इंटरनेशनली ले सके ग्रीन क्लाइमेट फंड और मल्टीपल फोरम से, या हम लोग जो है वो मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो बना सकें जिसके अंदर हम लोग लेके चल सकें। जैसे मतलब अभी भी हम लोगों ने एक फंड, एनवायरमेंट एंडोमेंट फंड क्रिएट किया है जिसका पर्पस ही इसी तरह के छोटे छोटे क्लीनर प्रोजेक्ट्स जो है उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना होगा। तो विजन तो है, बात वही है कि अब हम अल्लाह करे इसको अचीव भी कर सकें, लेकिन पॉइंट इज चले अगर 100% ना सही, 30-40 ही सही, कुछ तो एटलीस्ट एक एक आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क तो आया है कि जिसके ऊपर आप 30-40 या कुछ आगे का अपना रोड मैप तो डिफाइन कर सके ना। तो इससे ये तो पता चलता है कि कम से कम आपके कुछ तो इस मेजर इशू की तरफ जो है वो आपका एक स्टेप है। तो बाकी कोशिश तो है, और जो आने वाला वक्त है मुझे ये लगता है कि पहले जितना क्लाइमेट चेंज निग्लेक्ट हो चुका है, आई डोंट थिंक सो कि अब हम लोग इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं या इवन अब गवर्नमेंट्स भी इसको नेग्लेक्ट कर सकती हैं। सो इट्स अ हॉट इशू राइट नाउ। I hope I answered the question. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साद, फार्मर प्रेसिडेंट वाईपीडीसी यूएफ, और करंटली मैं एज ट्रेनिंग एरिया लीडर सर्व कर रहा हूँ एक पेस्टिसाइड कंपनी में। तो इस क्लाइमेट चेंज को सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हम ही लोग जो फार्मर कम्युनिटी हैं हम इससे मुतासर हो रहे हैं। मेरा इसमें क्वेश्चन ये है मैम कि पहले हमारा एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो क्या ये आप ये दो तीन डिपार्टमेंट जो हैं ये ओवरलैप नहीं कर रहे? इसमें रोल्स को कैसे आप डिफाइन करते हैं कि वो पहले क्या काम कर रहे हैं और आप इसमें इसमें डिफरेंस किधर आएगा? अच्छा है, इस तरह है साथ के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, देखें वो काम करते हैं वेदर फोरकास्टिंग पे, वो काम करते हैं वेदर इंटरप्रिटेशंस पे, ठीक है। ये बारिश है, ये मॉनसून, ये मतलब लाइक अब इस तरह का वेदर है, उसके मुताबिक वो आपके लोग अलर्ट्स जो जारी करते हैं वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट का काम है, आप मतलब अव्वल तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ये सेम चीजें ही हैं, ठीक है। इनका फंक्शन सेम है, इन्होंने सेम काम करना है। मैंने आपको बताया ना कि डिपार्टमेंट सिर्फ सेक्रेटरीट है और एजेंसी का काम आप कह लो कि करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपके वाइस चांसलर है, उनके नीचे सारी आगे फिर यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टाफ होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का काम है, अगर आप देखें तो पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2012, ठीक है, ईपीडी की वेबसाइट के ऊपर है, उसके अंदर प्रॉपर सारे फंक्शंस दिए गए हैं। वो फंक्शंस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फंक्शन से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। हम लोगों ने जैसे आप कह लें कि एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन करनी है। हम लोगों ने आप ये पंजाब ये एनवायरमेंट के ऊपर आप कह लो इंडस्ट्रीज के इमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। हम लोगों ने रेगुलेट करना है इंडस्ट्रीज को। रेगुलेट करने का मुराद ये है कि आप कोई भी इंडस्ट्री विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह आप कह लें एलडीए है, एफडीए है और ये एनओसीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक वाइज ईपीए पंजाब भी एनओसीज इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है, उनको इजाजत देता है कि अब आप कंस्ट्रक्शन कर लें, अब आप जो है वो इसको ऑपरेशनल कर लें, ठीक है। तो वो एक पूरी पूरी आप कह लो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। सो टोटली डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम, और वो ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आप इसके भी वो चाहेंगे तो ऑब्वियसली आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जाएगा, उनके फंक्शंस चेक कीजिएगा, और ईपीए पंजाब की वेबसाइट पे भी जाएगा और उनके फंक्शंस जो है वो चेक करेगा। सो बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट काइंडली सोहेल अहमद साहब, आप अपना सवाल लें। अस्सलाम वालेकुम। मैम, सबसे पहले तो आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। तो जो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस जो वेबिनार है उसका टाइटल था क्लाइमेट चेंज एंड मॉनसून। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक चीज़ शेयर की है
फ्लड के रिलेटेड। तो ये जो जितना सेटअप है ये बना है पंजाब के लिए। तो जब बारिशें होती हैं तो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर से पानी आएगा और जो दूसरी साइड से पानी आएगा, इसको आप कैसे मैनेज करेंगी? क्या इसके लिए कोई वाटर शेड बनाए जाएंगे कि जो पानी अपर साइड से पंजाब के मैदानी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लड की कंडीशंस पैदा होती हैं? तो पहला सवाल तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब जब फ्लड्स आते हैं तो इससे एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बड़ी मुतासर होती है, जिसमें से सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है वो सॉइल इरोजन का है और उसमें वाटर इरोजन आ जाती है। इस चीज को आप कैसे डील करेंगे? और तीसरी चीज जो है वो आपने इसी में मेंशन की थी, PM10 और PM2.5 के बारे में। तो वो बहुत मिन्यूट मिन्यूट कहते हैं कि नजर ना आने वाले पार्टिकल हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे? क्योंकि जो हमारे विलेज सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्मर इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते जब वो प्लोइंग करते हैं या जब वो कंबाइन हार्वेस्टर या थ्रेशर चलती है, तो वो इस चीज को नहीं मद्देनजर रखते कि इसमें से कुछ इस तरह के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो हमारे लंग्स में जा सकते हैं, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगी? वालेकुम सलाम। अच्छा सुहेल साहब, वन बाय वन पहले तो जो आप बात कर रहे हैं फ्लड की, देखिए बात ये है कि ऑब्वियसली ये पंजाब का डॉक्यूमेंट है तो हमारा प्राइम फोकस तो इसमें पंजाब ही होगा, ठीक है। बाकी प्रोविंसेस जो है वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉलिसीज और बना रहे हैं, ठीक है। अब वहां से जो पानी आएगा जी बिल्कुल, अगर आप इसका फ्लड के सेक्शन में भी आप ये डिटेल इनके एक्शन प्लान देखेंगे तो जो उसके अंदर एक्शन प्लान है वहां पर ये बनाया गया है कि हम लोगों ने स्मॉल डैम कंस्ट्रक्ट करने हैं, कम्युनिटी पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पज ही यही है कि ये जो मानसून का पानी है आप इसको एड्रेस कर सकें। और इसमें जो हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज असाइन की हैं वो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को, CNW को, वासा को, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की डोमेन में वो नहीं आता ये मानसून के पानी को देखना और करना। जो सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन की एब्सोल्युटली ट्रू ये इश्यूज हैं। और यही बात है कि मैक्सिमम हम इनको जितना कवर इन पॉलिसी टारगेट्स में, इनके एक्शन प्लान में कर सकते थे हमने किए। लेकिन स्टेप अगर कोई चीज नहीं एड्रेस हुई भी होगी तो लाइक हमें लेटर ऑन जिस तरह अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडेंटिफाई होता जाएगा तो हम इस डॉक्यूमेंट को फिर अपडेट करते जाएंगे। जहां तक पार्टिकुलेट मैटर्स की बात है, देखिए फार्मर्स का, और बात यह है कि अगर हम एनवायरनमेंट को देखें तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात कह देना कि आप हर एक चीज को बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट देख लेगा या हम उस सबको कर लेंगे। हम लोगों अगर देखें तो हम लोगों का एक्चुअली पार्टिकुलेट मैटर्स और ये तमाम जो है वो बेसिकली हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं अपने हमारे जो एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की लैब भी है, ठीक है, वो भी है। इसके अलावा इसके मॉनिटरिंग के लिए हमने कुछ लैब्स को, क्योंकि ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑल ओवर द प्रोविंस या हर जगह पे मॉनिटरिंग कर सके। तो अगर कोई इन पर्टिकुलर मैटर्स की मॉनिटरिंग करवाना चाहे या हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ करना हो तो हम लोगों ने कुछ लैब्स को भी सर्टिफाइड किया हुआ है। वो प्राइवेट लैब्स भी इनकी मॉनिटरिंग वगैरह करती हैं, ठीक है। और हमारे अपने कुछ जो लाहौर के अंदर तो हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो हमें PM2.5 और उनकी रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि बाकी प्रोविंसेस में नहीं थे और 30 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन परचेज करने का मकसद तो यही है कि हम इसको एक्सपैंड कर सकें ताकि उन एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं हमें वहां से डेटा आ सके और हमें पता चल सके कि अच्छा ये चीज इतनी है और हमें इसके ऊपर इन फ्यूचर काम करना है। थैंक यू। This is the last question to Anuj. You can unmute yourself and you can ask. अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. मेरा नाम उरूज फैसल है और आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर इन बाउदन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं 126। आपने अभी फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन था उसका आपने जवाब दिया था कि अगर हम इन चीज़ों पर 100% ही 30 to 40% भी करें काम पर्सनली या फिर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं तो बहुत से चेंजेस आ सकते हैं। मेरे सबसे एक तो सवाल है कि क्या जितने भी यहाँ पर लोग हैं इन्होंने किसी ने भी, मोस्टली लोगों को इतना वो नहीं होगा कि प्लांटिंग का सिंपल हम प्लांटेशन भी करें ना उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, पर पर्सन भी 100 प्लांट्स लगे उससे भी बहुत पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा आपसे इस वेबिनार के लिहाज से, जो आपने में भी टर्म बताई थी कि कार्बन एमिशन की कैलकुलेशन GHS आई थिंक सो,
तो उसके फुटप्रिंट्स को आपने कहा था कि उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर में अपकमिंग इसकी बहुत डिमांड है। एक तो उसको हम यानी कि उससे कोर्स कोई करना हो या उससे इंफॉर्मेशन कोई लेनी हो, कोई आपने बताई थी वेबसाइट, वो उसको आप एक डिटेल से बता दें। और दूसरी बात जो आपने कहा था कि अगर हम कोई रिसर्च करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो वो कहाँ पोस्ट करें, तो उसके लिहाज से हमें अब्रॉड से या बाहर से हमें फंडिंग रिलीज हो, उस लिहाज से हमें प्रोसेस का जरा मुझे डिटेल बता दें। थैंक यू। अच्छा अरूज, इस तरह है जी, बिल्कुल आपने ट्री प्लांटेशन की बात 100% करेक्ट की है। मैं टोटली टोटली सपोर्ट यू कि हमें अपने तौर पे, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज का इशू ही इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे इस पे टेकअप करते हैं ना, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जहां तक आपने जीएचजी एमिशंस की पॉइंट रिव्यू से बात की है, उसके अंदर अगर आप वैसे जाएं तो आपको ट्यूटोरियल्स भी काफी मिल जाते हैं। लेकिन यूएस ईपीए की वेबसाइट है, ठीक है, वो भी कार्बन जीएचजी एमिशंस, आप वहां जाएंगे, उन्होंने भी कुछ टूल्स अपने डिवाइस किए हुए हैं। लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड सजेस्ट कि आप पहले जीएचजी प्रोटोकॉल, ठीक है, मैं देखूंगी, मैं जैफ के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी उसका, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। जीएचजी प्रोटोकॉल, ये एक ऑफिशियल साइट, उन पे जाएं। उन्होंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में बताया कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से इमिशंस कैलकुलेट करनी है, कौन सी इमिशंस डायरेक्ट में आती हैं, कौन सी इनडायरेक्ट में आती हैं, ठीक है, फिर आपने किस तरीके से उसका मतलब पूरा एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म उन्होंने डिवाइस किया हुआ है। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर उससे भी ज्यादा आप लोग चाहिए हो तो आप लोग इवन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंटिंग, कार्बन इमिशन स्कोप 1, 2 एंड 3। तो इट्स बेटर कि आप पहले स्कोप 1 और 2 से शुरू करें, क्योंकि स्कोप 3 थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है। जो आपने फंडिंग की बात की है, उसके भी डिफरेंट फॉरम्स है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की मैंने बात की है, जेफ की मैंने बात की है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की है। आप इनके भी, या इवन आप गूगल पे भी लिख के देखेंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसमें ये है कि देखिए उनके भी ना प्रोजेक्ट्स लेने के एक तरीका होता है, वो ऐसे नहीं होता लाइक मे बी अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करे जिसमें हम लोगों से, जिस तरह एक टाइम था जब हम लोगों ने ये साफ किया था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने एनजीओज या यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया था कि वो हमें क्लाइमेट से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स ने, हमने इन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को इवेल्युएट किया था, फिर वो हमने मिनिस्ट्री भेजे थे, और फिर वो मिनिस्ट्री में डिस्कस होके तो फिर वो हम लोगों ने जेफ से फंडिंग लेनी थी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली आई हैव नो आइडिया कि ऐसा कोई डायरेक्ट एक्सेस है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो इन फ्यूचर आप लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ फंडिंग अवेल कर सकते हैं। चलिए इंटरनेशनल फंडिंग ना सही, गवर्नमेंट फंडिंग, लोकल फंडिंग तो हो सकती है ना, कि हम लोग ही अगर आगे इन प्रोजेक्ट्स को लेके चलते हैं और हम लोग अनाउंस करते हैं कि हमें इसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है किसी भी तौर पे। जिस तरह अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो जॉब्स कुछ एडवर्टाइज की है जिसमें हमने एनवायरमेंटलिस्ट मांगे हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट है कि और ना सही आप लोग लोकली तो फंडिंग ले सकते हो ना। तो पॉइंट है कि आप लोग उस पॉइंट व्यू से भी कुछ ना कुछ करें। लेकिन वो मैं इसलिए बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल साइट्स को इसलिए देखें कि आपको ये पता चले कि दुनिया में कितना इसके ऊपर काम हो रहा है, किन किन प्रोजेक्ट्स को लोग ग्रांट दे रहे हैं और कितनी ज्यादा ग्रांट दे रहे हैं। पाकिस्तान की भी कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसने जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड से फाइनेंसिंग ली, वो काफी अच्छी फाइनेंसिंग होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन कार्बन एमिशंस की मैं इंशाल्लाह जैब से शेयर कर दूंगी, वो आप लोगों से करेगा, वो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। Thank you so much, ma'am. Before just concluding that, I have a question as well. So, ma'am, we were talking about online system where all the like different departments can link and share the things with each other. But when it comes to our websites as well, even government websites, they are not well organized, and as far as the structures are concerned, they are not online, and they haven't developed that infrastructure where they can support right, where they can support हम लोगों को ऑनलाइन मॉड्यूल पे मूव ऑन करना चाहिए। तो लाइक 2070 या 2035 तक हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं व्हेन हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वही इस तरफ नहीं जा रही। देखिए इस तरह है कि
माहिन, अनसर्टेनिटी ना हर सिनेरियो में है। अगर आप ये हम सोचेंगे करंटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हम देखें तो अभी तो हमारा मुल्क जिस फाइनेंशियल क्राइम से गुजर रहा है, तो फिर तो हमें कुछ भी डिवाइस नहीं करना चाहिए ना। तो अनसर्टेनिटी और क्या होगा क्या नहीं, वो तो हर ऑल द टाइम एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, मेजर इशू यही है, जिसकी वजह से हमें जो जो ऑनेस्टली जो फाइनेंस जिन्होंने करना है, जो इन्वेस्टर हैं, आप देखें हमारा डाउनफॉल इसलिए आया क्योंकि अब बाहर से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इंडस्ट्रीज नहीं लगाना चाहते, ठीक है, क्योंकि उनको ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। सो ये इश्यूज तो साथ साथ हैं ही, लेकिन अब इन चीजों को देखते हुए ऐसा तो नहीं है कि हम किसी टॉपिक के ऊपर या किसी चीज के ऊपर काम ही ना करें। सो मतलब ये पॉइंट है। सेकेंडली, जो आप वो बात कर रहे हो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स इतनी नहीं है, देखिए उसमें पता क्या है, जो डाटा शेयरिंग की मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है और होनी भी चाहिए। आपको भी शायद पता होगा कि अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसके तहत कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इन राइटिंग वो एक एप्लीकेशन लिखेगा और उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। जो इंटर डिपार्टमेंटल डाटा होता है ना, देखें वो बात ये है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए होता है, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कस्टडी में होता है। सो इट्स नॉट लाइक वो हम उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दें। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, जिस तरह अगर आप देखें ईपीटी पंजाब की वेबसाइट पे, तो उस पे एयर क्वालिटी की रिपोर्ट्स दी गई है, ठीक है। वो मतलब लाइक डेज वाइज भी है, ईयर वाइज भी है, और उसमें काफी ज्यादा डाटा अपलोड ही इसलिए किया गया है फॉर द अवेयरनेस पर्पस, कि आप लोगों को पता हो। तो वहां पर एयर क्वालिटी का सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, जितना मॉनिटर हुआ हुआ है। सो और बाकी जो डिपार्टमेंट्स का, वही बात है, अगर कोई डिपार्टमेंट आप देखें, जिस तरह मैं देख रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोई अपना ब्रिक किलन का प्रोजेक्ट किया था, तो उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन ब्रिक किलन से रिलेटेड थी वो सारी अपलोड की हुई थी। सो डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग ऑन इट। अब तो क्योंकि अब आपको ये पता होगा कि हम लोग वैसे भी, अब गवर्नमेंट का भी स्ट्रैटेजी ये है कि हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव करें, डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करें। सो हमारा ये फ्यूचर में अब फोकस ही डिजिटाइजेशन के ऊपर है कि हम अपना सारा काम भी ऑनलाइन करें, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो भी। अभी तो क्योंकि मैं आई एम वर्किंग विद द डिपार्टमेंट सिंस लास्ट 10 years, तो अब तो चीजें बहुत बेहतर हो चुकी हुई है वेबसाइट्स पे भी। मतलब मुझे अभी याद है, जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स का डाटा अवेलेबल होता ही नहीं था। पता ही नहीं होता था कि कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या क्वालिटी है, क्योंकि अभी वो सिर्फ लाहौर में ही है, तो लाहौर ही का अवेलेबल है। लेकिन वही बात है, अब जिस तरह हम एक्सपैंड करेंगे तो बाकी सिटीज का भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। Thank you so much, ma'am. So, ladies and gentlemen, we have reached the conclusion of this insightful webinar. Before we bid bye, I would like to extend a heartfelt thank you to all our Hello. speakers, Ms. Mariam, and participants for their valuable contribution. And now it's my great pleasure to introduce our guest of honor, Dr. Shaukat Ali, our renowned senior tutor and distinguished speaker in the field of environmental studies. So because of his support, we are able to make this webinar a success. So Shaukat, would you like to share some remarks on that? जी, thank you very much. I am really grateful to भीम खान के उनका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है अपने इस डिपार्टमेंट में। क्लाइमेट चेंज को वो देख रही हैं, और मैं समझता हूँ कि यूथ के साथ इनका जो इंटरेक्शन है ये बहुत डिज़ायरेबल था, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने वक्त निकाला है। आज सैटरडे आमतौर पे ऑफ होता है, सैटरडे के दिन इन्होंने वक्त निकाला और हमारे यूथ के साथ इंटरेक्ट किया। YPDC जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये यूनिवर्सिटी चैप्टर है, तो इनकी टीम माशाल्लाह, इनके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, आज की होस्ट, आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं फिर एक दफ़ा मरीम खान का शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मरीम खान जो हैं वो यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाएँ, और मैं उनको अपनी इनविटेशन एक्सटेंड करता हूँ कि यहाँ वो फिज़िकल सेशन करें हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और हम समझेंगे कि इससे और ज़्यादा हमारी नेटवर्किंग बढ़ेगी, और हम स्टूडेंट्स को, यूथ को लूप में ले सकेंगे फॉर द पर्पस ऑफ addressing the very big issue, the climate change. Thank you very much. Thank you very much, Shaukat साहब, and it's really all my pleasure। और मेरा मतलब literally आप सबके साथ ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। So inshallah, looking forward to work with you as well in future.
मैम डॉक्टर फहद हैं हमारे डिपार्टमेंट से और वो सवाल कोई अपना लेना चाह रहे हैं काइंडली। सर कंटिन्यू प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम. First of all, I would like to congratulate the webinar that you have conducted. मैं डॉक्टर फहद हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री से. मेरा एक कमेंट है विच इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन प्रेजेंटेड. मैं थोड़ा सा इसको सुन रहा था तो उसमें मुझे फील हुआ कि इसमें फॉरेस्ट्री का सेक्शन जो है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज वो थोड़ा सा निगलेक्टेड है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में जितनी भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे या एडेप्टेशन पे बात होती है सबसे पहले ट्री प्लांटेशन पे उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पे बात होती है. जिस तरह अर्बन फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करने की बात होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री को दुनिया बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि स्ट्रेट एग्रीकल्चर इज नॉट नो मोर फिजिबल राइट नाउ. तो मेरे अपने पर्सनली दो प्रोजेक्ट्स थे. एक दैट वन प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय यूएसए, ट्री फंड का प्रोजेक्ट था. उसमें हमने कैटेगराइज किया डिफरेंट ट्री स्पीशीज को जो पार्टिकुलेट मैटर को हवा में से कलेक्ट करती हैं, फिल्टर आउट करती हैं. तो वी कैटेगराइज ऑलमोस्ट 10 स्पीशीज. जो पायलट प्रोजेक्ट था. देन द सेकंड प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय ALP PARC. that was to categorize how the climate change can be mitigated through agroforestry और उसकी वीड प्रोडक्टिविटी पे क्या उसके आते हैं रिजल्ट्स. तो वी बोथ प्रोजेक्ट्स वर फॉरेस्ट्री बेस्ड. तो मैं ये सोच रहा था कि पॉइंट आउट करूं कि आप लोग ट्रीज को इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री उसको लाजमी इसमें एक मेजर चंक दें उसको उसकी फाइनेंसिंग में. और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट. एफर्ट्स बहुत सारी होती हैं इस मुल्क में बट देर इज़ नो कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज. गवर्नमेंट्स आना जाना ये मैटर नहीं करता. कुछ गवर्नमेंट्स 2 साल की आती हैं, कुछ 3 साल की, कुछ पूरा टेन्योर करके आती हैं. बट बीइंग मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा इस फोरम से भी कि अगर आप ये हमारे मुल्क में एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज आ जाएं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड द पॉलिसीज एंड द सब्जेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फहद, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. टोटली एग्री विद यू. जो आपने बात की है मैं इंशाल्लाह डिपार्टमेंट में अगर हम लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट्री के ऊपर या ट्री प्लांटेशन के ऊपर हम लोगों ने अभी भी रिसेंटली कैंपेन भी शुरू की हुई है जिसके ऊपर काफी काम हो रहा है. तो अगर हम लोगों को इस तरह की, मैं इंशाल्लाह एट हाई फॉरम ये जरूर रिकमेंड भी करूंगी और हुआ तो मैं आपके साथ भी कोशिश करूंगी कि इसमें मजीद को कोलैबोरेट कर सकें हम लोग कि इस तरह की स्पीशीज ही हम प्रमोट करें फॉर ट्री प्लांटेशन जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, स्पेशली जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं. सो मतलब मैं उनकी भी फाइंडिंग्स इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी. थैंक यू वेरी मच. To conclude this webinar, I would like to invite Professor Umair Gul, our in charge of Bible, to share their closing remarks. Hello, Umair. Over to you. Are you ready? Okay. So, we have an announcement. Our president, Jeff, will present that. So, sir, Jeff. थैंक यू सो मच. मेरा ख्याल है कि ये कंक्लूजन का टाइम आ गया और जो हमारी अथॉरिटीज़ सारी बातें इस मीटिंग में मौजूद हैं, डॉक्टर शौकत साहब हैं हमारे इंचार्ज हैं और मैम मरियम है, इन सबको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा हमारे कंपेन के हवाले से. बेसिकली ये कंपेन जो थी वो अवेयरनेस के हवाले से है और जिस अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हमने एक हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी में इस कंपेन को फैलाया है और मेरी टीम ने और हम सब ने मिलके इस चीज़ को, बल्कि यूनिवर्सिटी की दीवारों से बाहर भी, इनफैक्ट पंजाब की डिफरेंट हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन आई है और इस टाइम ऑलमोस्ट 1,000 के करीब हम लोगों ने स्टूडेंट जो है उनकी पार्टिसिपेशन आई है. इसका मतलब है कि 1,000 स्टूडेंट नहीं, 1,000 फैमिलीज के अंदर ये अवेयरनेस गई है. तो मेरा ख्याल है कि हम इसी तरह से इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे. अगर हमारी अथॉरिटीज़ की सबकी हम सपोर्ट रही हमारे साथ तो इंशाल्लाह इसी मंथ हम लोग जो है वो
और भी प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली जो है वो कोलैबोरेशंस भी आ चुकी हैं और नेशनल लेवल पे भी डिफरेंट जो एनजीओ काम कर रही हैं। स्पेशली ये EPAS साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इनकी भी कोलैबोरेशन हमारे साथ इंशाल्लाह होगी। और जो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग डिफरेंट जो है इनिशिएटिव जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से YPDC लेना स्टार्ट हो गई है। प्रीवियसली भी करते रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको अब लॉन्ग टर्म लेना चाह रहे हैं। हम इसको एक हफ्ता या एक महीना या एक मीटिंग के लिए नहीं रखेंगे, इसको हम लॉन्ग टर्म जो है वो लेना चाह रहे हैं। और अवेयरनेस हमने करनी है, हम ही बेसिकली मीडियम है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट का जो पैगाम है वो हमने ही ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पहुंचाना है। तो आप हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Zaf, for your insightful closing remarks. So, concluding our event, I would like to share some of the things कि आपकी जो queries थी कि general members और attendance वगैरह, तो जो already general members हैं, they will be part of this and inshallah in our physical classes and when the semester will start, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग हमारी meetings के अंदर। सेकेंडली जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं, तो हमारी मेंबरशिप जो की फी है दैट इज़ वेरी मिनिमल फॉर 100 रुपीज़। आप फॉर्म फिल कर आप हमारा मेंबर बन सकते हैं। एंड अदर देन दैट जो सर्टिफिकेट की बात है, तो सर्टिफिकेट जो है वो आपको इस ग्रुप के अंदर आपकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग और आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। एनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर। एंड थैंक यू सो मच। वी कैन कंक्लूड आवर वेबिनार। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।